one and all here, on behalf of the institution and IQAC, I welcome the selection committee convened as per UGC regulation to consider the candidature of Mrs. Anamika from academic level 10 to academic level 11 as per prescribed norms. We are honored by the presence of respected principal, Professor Sushma Yadav Madam, Honorable Director Nominee, Professor Sham Shankar Singh Sir, Principal, Government College, Bijoli, Jhansi, subject experts, Professor Rajshri Chaturvedi Madam from Vidyavati Mukundlal Girls College, Ghaziabad, and Professor Anupama Srivastava Madam from Jawaharlal Nehru PG College, Barabanki. I welcome you all to this meeting. With the permission of the chair, I now invite Mrs. Anamika to present a brief overview of her academic journey and significant contributions. Mrs. Anamika Singh, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. Once again, a very good afternoon to all the respected teachers, Director Nominee Sir, and subject experts. I would like to share my screen, ma'am. Sure. And this is a small PPT that I have prepared. These are my details. I am Assistant Professor in the Department of Political Science, and I joined on 8 September 2017, and my due date of promotion is 8 September 2023. I have completed 6 years of my service on 8 September 2023. Because I'm pursuing my PhD, I have submitted it, but the process is still on. I completed one FIP in 2021 and one refresher course in 2022. I have published a paper titled Obor and India in Educare Journal in 2020, and I have 4 chapters in edited book. Besides that, I have presented papers in 14 national and international seminars and conferences, and I organized one national seminar in 2020 on the title COVID-19, Social Distancing, Technology and Education Equilibrium as organizing secretary. So this was my short biodata as per the requirement. Thank you. Thank you, Anamika. I now urge subject expert Professor Rajshri Chaturvedi Madam to give her feedback and recommendations. Madam, I have gone through her CAS promotion form and I found it to be suitable for promotion from grade 3 to 7,000 and from academic level 10 to 11. I recommend my permission. I recommend her for promotion. Thank you so much, ma'am. Now I call. Yes, ma'am. हाँ, Any other? मेरी तरफ से इनकी सारी चीजें कंप्लीट हैं जो भी प्रमोशंस के लिए चाहिए। मैं रिकमेंड करती हूँ कि इनका किया जाए 10 से 11 लेवल में। Thank you so much, ma'am, for your assessment. And now I solicit Director Nominee Sir Professor Sham Shankar Singh to give his observations and input. अनामिका मैडम, आपने ज्वाइन कब किया? सर 8 सितंबर 2017। अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई आपकी? सर सबमिट हो गई है अभी, लेकिन बाकी जो प्रोसीजर है लास्ट में वो बचता है। यानी आपको 4 की जगह 6 साल में दिया जा रहा है? यस यस जी तो डेफिनेटली जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है एक्सपर्ट मैडम? इसमें इनका ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, वन रिफ्रेशर,
इनका इनका चाहिए 100 का इनका चाहिए मार्क्स चाहिए इनके टोटल इनके जो कैस्ट में इनके चाहिए इनकी सारी रिक्वायरमेंट है। पब्लिकेशन इज नॉट अ मस्ट बट सी हैज गॉट हर इनको पब्लिक एपीआई की जरूरत नहीं है, रिसर्च पब्लिकेशन की जरूरत जी नहीं, पब्लिकेशन की सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लेकिन इनकी है और एपीआई भी ये फुलफिल कर रही हैं ये। और इनके जो इनकी जो एलिजिबिलिटी जो टीचिंग की भी है उसमें भी हमने इनका चेक किया, इनके परसेंटेज काफी अच्छे हैं। अच्छा, और एपीआई इनका की जरूरत 6 नहीं ईयर है के हमने इनको। इनसे हाँ नहीं एपीआई की जरूरत है बट नॉट अ पब्लिकेशन इज नॉट अ मस्ट थिंग। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल मैडम ये कितने पीरियड पढ़ाती हैं ये? 4 पीरियड सर। अच्छा, किस क्लास को 4 पढ़ा आवर रही हैं? 4 आवर किस क्लास को 1 पढ़ा रही आवर हैं? 1 पीरियड यूजी? बीए ओनली ग्रेजुएशन। अच्छा, पीजी नहीं है आपके यहाँ? नहीं हमारे पीजी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं इनकी टीचिंग बिल्कुल बिल्कुल टेक्निक सर, से? टीचिंग जी सर बहुत कोई अच्छा कोई टीचिंग इनोवेशन मैडम कुछ इन्होंने जो रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं जी। उसको आपने चेक किया? वो अकॉर्डिंग टू टाइम है, वो अकॉर्डिंग टू पीरियड है वो? जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा है इनका। अच्छा अच्छा। हाँ, बस इनका एक वही ड्रॉबैक है, उनका पीएचडी टाइम से नहीं हो पाया। 4 साल में हो जाना था लेकिन वो बहुत लंबा खिंच गया, 6 साल हो गया, तो इसकी वजह से इनको लॉस रजिस्ट्रेशन भी की हो रहा डेट क्या है? है। जी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन इनका अनामिका शायद 21-22 में ही है ना। अनामिका कब जी का है तुम्हारा? 18 का है शायद। रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कब हुआ अच्छा, था पीएचडी में? मैम मेरा है 2020 का। 2020 का 20 है? में जी। अच्छा तो मैडम 5 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा समय हो गया। हाँ। एक क्या साल से दिक्कत सर आ गई, यूनिवर्सिटी में कैसा ही क्यों? जमा है वो, मतलब आगरा यूनिवर्सिटी में जानते हैं सब, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हम्म थीसिस सबमिट कर दिया आपने? हाँ जी सबमिट सर। हो गई है। सर वो सबमिशन में ही अच्छा टाइम लग गया। मेरी उसमें तो बहुत, कब उसमें की भी 1 साल तैयार लगा रखी दिया थी, इन्होंने। पर इनकी वो तरफ से यूनिवर्सिटी काम की हो गया तरफ से ही था। वो लोग डेट नहीं दे रहे थे। अच्छा, मतलब पीएचडी में आपका 3 साल से ज्यादा समय लगा। हाँ जी अवार्ड होते होते अभी पता नहीं। पीएचडी कहाँ से कर मैम। रही हैं, आगरा से कर रही हैं? यस सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आगरा से कर रही हैं। जी परस्यू नहीं किया आपने वहां पर कि डिले क्यों हो रहा है? सर बहुत परस्यू किया, थोड़ा नहीं बहुत किया, और मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, तो वो बस मीटिंग ही नहीं कॉल हो पा रही है किसी रीजन से। कभी वो लोग यूनिवर्सिटी के कोई कारण बता देते हैं, कोई कभी पर्सनल हो जाते हैं वहां पर। पर हो जाएगी सर, अब मतलब जनवरी एंड तक उनका है कि करवा देंगे। एवेल्यूशन हो गया उसका, थीसिस का अब आपकी? अभी नहीं नहीं हुआ सर, अभी नहीं। अभी भेजी नहीं गई है ना एक्सपर्ट के पास? नहीं, एक्सपर्ट के पास नहीं भेजी है सर उन्होंने। तो एक्सपर्ट यानी के पास यूनिवर्सिटी भेजने में के ही है बाद अभी? जी यूनिवर्सिटी जी। में ही शायद सबमिट कर दिया है, अभी एक्सपर्ट के पास नहीं भेजी गई है। अच्छा, तो अभी तो 6 महीना और लग जाएगा आपको। वही तो कह रही हूँ। लगेगा टाइम, तो क्योंकि 2 एक्सपर्ट के पास जाएगी, दोनों की रिपोर्ट आएगी, फिर आपका जी तो इसके बाद टाइम लग जाएगा अवार्ड होते होते तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल, वो 6 महीने से कम नहीं लगेगा। अगर वो बिल्कुल सर। इस महीने अगर दोनों भेज दें तो कम से कम 2 महीना तो एक्सपर्ट लगा देंगे इसमें। क्योंकि वो अपनी और रिपोर्ट उसके बाद लगाएंगे पहले। हम्म, ठीक है मैडम, तो आप एक्सपर्ट्स जो हैं वो सहमत हैं और रिक्वायरमेंट्स भी पूरी है, तो जी लेकिन सर। ये इनोवेटिव नहीं लगती। काफ़ी समय लगा दिया इन्होंने सर पीएचडी पूरा करने में। और प्रिंसिपल मैडम आप भी सेटिस्फाइड हैं तो चलिए ठीक है, मैं भी रिकमेंड कर दूंगा इसको। ठीक है अनामिका, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Sir, can I add one ठीक, thing here with your जी permission? जी Sir, her academic record has also been very good. It's due to some circumstances that she has not been able to complete her PhD. Otherwise, she has been a good scholar during her student time also. She has secured more than 75% in high school, inter, and graduation, post-graduation. So, due to some मैडम circumstances only, 75% तो कम है this अब। has happened. तो ये हाँ, बहुत अब है पुरानी सर, बात है, बट उस समय ठीक था। पुराना है In सर। this हाँ present सर, era, पुराना। more than हाँ 80% number getting the हाँ students from हाँ। these boards. सर इट I वाज In sir, इन but earlier she had time, 1998।
First division which was was the your high school? very prestigious position. 60% was very Yes. prestigious position. Now Yes, sir. less than 80% is average marking. तो वो समय So, बीत गया. which अब year तो have you done your high जो school? मीस मैम, मेरा पूछ रहे हैं मैम. 1998. 1998. हाँ, तो वो तो समय बीत गया मैडम. अब जो बोर्ड्स हैं वो तो हाँ जी, हाँ. आप समझिए 99% मार्क्स आ रहे हैं और वो नंबर एक हाँ नंबर जी, वो हाँ कैसे जी. कट जा रहे हैं, इतना कंपटीशन हो गया है ना. सर बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. यू आर OMR पे एब्सोल्युटली होता है, राइट, OMR सर. बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है ना अब तो एग्जाम. सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सर. जो So, अभी madam, I has स्टैंडर्ड also है. recommend. हाँ जी. अच्छा अनामिका, एक बात बताइए. सर. अनामिका सुन रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर. मुझे एक बात बताइए, अभी जो रिसेंट पॉलिटिकल पोजीशन है, सर. ठीक है, उसमें अब वो लड़ाई विचारधारा की है. तो आप इसको सही समझती हैं क्या? एक मिनट. आप इसे सही समझती हैं क्या? अब जैसे सर. जो समाज है वो धर्मों के आधार पे बट रहा है. राइट जो सर. पार्टियां हैं वो जातियों के आधार पे बट रही हैं. तो आप इस पॉलिटिकल पोजीशन को कैसे देखती हैं? क्या ये सही है? क्या ऐसा लगता है आपको? सर, सही और गलत तो एक दो बहुत एक्सट्रीम्स हो जाते हैं, पर ये नेचुरल नहीं है देखिए, हमारे आप कंट्री टीचर को हैं. देखते हुए. आप बिकॉज इट टीचर इज. हैं, आप जब क्लास में खड़ी होती हैं तो वहाँ सभी तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है. कुछ सिर ढके हुए हैं, कुछ सिर खोले हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न हैं, कुछ जो है ट्रेडिशनल हैं. तो ये जो विचारधारा है, आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे इसमें? ये पॉलिटिकल पोजीशन जो है ये समाज में क्या सुटेबल है? क्या ये एक वर्ग जैसे कहता है कि हमारा वर्षों से शोषण हुआ, एक वर्ग कहता है अरे हमारी संस्कृति पे हमला हुआ, दूसरा वर्ग कहता है भाई देखिए हम तो जो है दबे जा रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है. तो ये जो चारों तरफ की लड़ाई फैल गई, तो आपको ये कैसा लग रहा है ये? सर, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम इसको एकदम बंद भी तो नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर अ डाइवर्स कंट्री. हमारे अंदर इतनी डाइवर्सिटीज हैं, और हम अगर अपने इतिहास को उठाकर देखें तो जितने सेक्शंस रहे उतनी तरह की विचारधाराएं फिर बनी हैं. और आइडियोलॉजीज तो, हाँ, एक इट इज अ नेचुरल प्रेजेंस इन एवरी कंट्री, इन एवरी सोसाइटी. हम आइडियोलॉजीज को हम एंड नहीं कर सकते. और सर, जैसे एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट अगर हम उसकी बात करें जो इंटरनेशनल लेवल पर रहा है, तो वो भी नहीं कह सकता है कि पूरी तरह से सारी आइडियोलॉजीज खत्म हो गई. तो हमारे कंट्री में जहाँ पर देर आर सो मेनी रिलीजन्स, देर आर सो मेनी कास्ट, तो उनके बीच में जो डिस्टिंक्शंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो जब तक खत्म नहीं होंगे सर, ये आइडियोलॉजिकल डिबेट्स भी खत्म नहीं हो सकती. ठीक है, चलिए अपने बच्चों को एक नज़र से देखिए, उनको ऐसा फील ना हो, कम से कम इस एज में तो ऐसा फील ना हो कि जो है हमें अलग से देखा जाना है. बिल्कुल उसके नहीं सर, बाद तो वो बिल्कुल. सब हाँ. अपने समाज के और रंग में सर, रंग जाते हैं. एक एक बात सर मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर आप परमिशन दे तो. सर, जैसे अगर हम हम्म. इनोवेशन की बात कर रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स में, तो अभी जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस. तो मैं सिर्फ पिछले 3 साल से अपने यहाँ पर स्टूडेंट से मॉक पार्लियामेंट करवा रही हूँ. मैं सिर्फ फाइल वर्क नहीं देती उनको, प्रोजेक्ट तो हम उनसे करवाते ही हैं, तो मॉक मैं खुद तैयार करवाती हूँ, बच्चे रोल प्ले करते हैं. और जब ये प्रैक्टिकल नहीं ऐड हुआ था, उससे पहले भी मैं करवा रही थी कॉलेज में. तो मुझे लगता है कि कुछ नया बच्चे करें, प्रैक्टिकली सीखें. और क्योंकि सर मैं खुद पहले सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से रही हूँ, और पिछले 6 साल मतलब मैंने वहाँ काम किया, फिर मैं यहाँ इस जॉब में आई 17 में. तो मुझे है फील्ड से जुड़कर काम करना, कि बच्चे प्रैक्टिकल जो रियलिटीज़ हैं उनको समझें और उसके साथ हम लोग मिलकर काम कर पाएं. तो जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उतना हम यहाँ पर सर बच्चों को कराने की कोशिश करते हैं. ठीक है अनामिका, जी. आप यंग जनरेशन हैं, उनसे बहुत उम्मीद है. एक ऐसे समाज का निर्माण करिए जो देश को संभाल सके. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ठीक है, पूरी चलिए कोशिश मेरी रहती है बहुत सर बहुत आप लोगों शुभकामनाएं की. आपको. जी, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सो मच. ओके.
Thank ठीक है, thank you, एक्सपर्ट sir. मैडम आपको Okay, thanks, नमस्कार, sir. प्रिंसिपल मैडम जी आपको नमस्ते, मेरा sir. नमस्कार, ठीक है, नमस्ते, नमस्ते sir. सर, IQAC नमस्कार। कोऑर्डिनेटर मैडम जी आपको भी मेरा नमस्कार। Thank you, sir. लीव कर Thank you, दें? sir. Namaskar. थैंक यू Okay, सो sir. मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू Thank मैम, ठीक ठीक। Okay, अपनी congratulations, डिटेल Anamika. थैंक यू मैम, Congratulations, Anamika. You have got recommendations from your subject experts and director nominees, sir, along with Thank you, principal, ma'am. Congratulations. थैंक यू, Okay, थैंक यू एवरीवन। मेरी तरफ से भी आपको आपके 10 to 11 के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। थैंक यू मैम, चलो, थैंक यू, बधाई हो आपको बहुत थैंक बहुत। यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you. It has been pleasure listening to you, sir. Thank you. Thank you. ओके मैडम, नाइस। थैंक यू। So, can we conclude the meeting now? Yes, yes, definitely, definitely. Yeah, how to leave it? See. चलिए। Oh, okay, okay. आयुष मैडम थैंक यू मैम, वंस अगेन। Thank Welcome. you. Thank you.